آپ اور میں، یہ گھاس، یہ درخت، یہ دیواریں، دنیا میں ہر شے مادے کی بنی ہوئی ہے، اور مادہ خود چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے۔ لیکن سن 1928 میں ایک انگریز سائنسدان پال ڈیراک نے ایک انتہائی حیرت کن پیشن گوئی کی۔ فزکس کے اصول استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ دنیا میں ہر موجود ذرے کے مقابل اسی جیسا ایک ذرہ ہے، اس کا وزن اتنا ہی ہے لیکن اس کی تمام صفتیں اس کی الٹ ہیں۔ ایسے ذرے کو اس نے ضد ذرہ یا اینٹی پارٹیکل کہا۔ جب پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈیراک نے یہ پیشن گوئی کی کہ الیکٹران کا ساتھی ایک مثبت الیکٹران یا پوزیٹران ہوگا، پروٹون کا ساتھی ایک منفی پروٹون یا اینٹی پروٹون ہوگا، اور نیوٹران کا اینٹی نیوٹران وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ذرات معلوم کیے جا چکے ہیں، دریافت ہو چکے ہیں، اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں مادہ اور ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر دونوں موجود ہیں۔ مادے کے ایک بنیادی ذرے یعنی الیکٹران سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ الیکٹران بجلی کا ایک ذرہ ہے۔ آپ اس وقت جو پروگرام اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل انہی الیکٹرانز کی بدولت ہے۔ الیکٹرانز کے دھارے کو کنٹرول کرنے سے مختلف تصویریں بنتی ہیں۔ اینٹی پارٹیکلز زمین پر قدرتی طور پر موجود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر الیکٹران تو قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، لیکن اس کا اینٹی پارٹیکل پوزیٹران زمین پر قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح پروٹون کا ضد ذرہ یعنی اینٹی پروٹون اور نیوٹران کا اینٹی پارٹیکل اینٹی نیوٹران بھی صرف خاص تجربہ گاہوں میں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تقریباً 1 صدی پہلے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے جو قانون دریافت کیا تھا، طبیعت کی دنیا میں وہ آج بھی ایک مشہور مساوات کی شکل میں موجود ہے۔ آئنسٹائن نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مادہ اور ضد مادہ ایک دھماکے سے ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں، اور اس عمل سے توانائی کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے۔ خارج ہونے والی توانائی کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر ہم گاڑی کا ایسا انجن بنا سکتے جو پیٹرول کی بجائے اینٹی میٹر کو بطور ایندھن استعمال کر سکتا، تو اس کا 1 گرام 1000 گاڑیوں کو ہمیشہ چلانے کے لیے کافی ہوتا۔ ایک عام طیارہ ایک سفر میں کئی ٹن ایندھن خرچ کرتا ہے، لیکن صرف 1 گرام اینٹی میٹر ایک بڑے طیارے کی تمام پروازوں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر کبھی مستقبل میں اینٹی میٹر کو بروئے کار لانا ممکن ہوا تو صرف 4 کلو گرام ضد مادہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے پاکستان کا ہر گھر روشن ہو سکے گا۔ زراعت، صنعت و حرفت، دفاتر، تعلیمی ادارے، ہسپتال، شاہراہیں، غرض کے پورے ملک کی سال بھر کی تمام بجلی کی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خلائی جہاز ستاروں تک کا سفر طے کرنے کے لیے اینٹی میٹر کو بطور ایندھن استعمال کریں۔ اینٹی میٹر کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرنا آج ممکن نہیں ہے۔ اس کو بنانا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس کو کسی برتن یا ڈبے میں بند کرنا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈبہ جو ہے وہ میٹر کا بنا ہوا ہوگا۔ بہرصورت آج فزکس کی دنیا میں اینٹی میٹر پر تحقیق ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ میں موجود ہوں۔ یہاں اینٹی میٹر بنانا ایک روزمرہ کا معمول ہے، اور اس کی مدد سے ایٹم کی پر اسرار دنیا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ لیبارٹری اتنی بڑی ہے کہ اس کی 27 کلومیٹر کی گولائی کا ایک حصہ یہاں یعنی سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور باقی حصہ سرحد کے اس پار یعنی فرانس میں ہے۔ یورپی نیوکلیائی تحقیقی لیبارٹری، جسے سرن کہتے ہیں، ترقی یافتہ یورپی ممالک کے وسائل کو جمع کر کے بنائی گئی ہے۔ یہاں مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہزاروں سائنسدان انتہائی اہم تجربات کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے سائنسی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ان تجربات کا مقصد قدرت کے بھید جاننا ہے۔ سرن کے اس ایکسلریٹر کی طاقت کو بڑھانے کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔
सन 2005 में यहाँ पर प्रोटॉन और जिद्दे प्रोटॉन को इंतहाई शिद्दत के साथ टकराने का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में उम्मीद है कि ऐसे ज़र्रात पैदा होंगे जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सके हैं, लेकिन वो इब्तिदाई कायनात के वक्त मौजूद थे। ये नया एक्सेलरेटर सरन की मौजूदा सुरंग में नस्ब किया जाएगा। इस वक्त हम एक ज़ेर ज़मीन सुरंग में खड़े हैं जो कि 300 फीट अंडरग्राउंड है। यहाँ पर एक तरफ से 300 अरब इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ से 300 अरब ज़िद्दे इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन तकरीबन रोशनी की रफ्तार से हरकत करते हुए आते हैं और इन ताकतवर मकनातीसों के ज़रिए, जिनकी ताकत ज़मीन की मकनातीसी ताकत से कई मिलियन गुना ज़्यादा है, ये एक रास्ते पर रहते हैं। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर इलेक्ट्रॉन और ज़िद्दे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं और E=mc², आइंस्टाइन की फेमस रिलेशन के मुताबिक मादा तवानाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। जिद्दे इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन्स सरन की लेबोरेटरी के एक हिस्से में पैदा होते हैं। पॉजिट्रॉन्स पैदा करने के लिए तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स की किसी धात पर बमबारी की जाती है। इससे बरामद होने वाले पॉजिट्रॉन को सबसे पहले एक छोटे दायरे में घुमाया जाता है, फिर ये इससे बड़े दायरे में मुंतकिल किए जाते हैं और बिलाखिर वो सरन के सबसे बड़े दायरे में दाखिल हो जाते हैं। 27 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के गुच्छों को हर सेकंड में 11,000 मरतबा घुमाया जाता है। जिस ट्यूब में ये गर्दिश करते हैं उसमें से हवा निकाल दी जाती है, गोया वहां खला पैदा होता है। हर गुच्छे की लंबाई तकरीबन 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 सुर्ख गुच्छे जो इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करते हैं मुखालिफ सम्त में हरकत कर रहे हैं। ये ज़र्रात और ज़िद्दे ज़र्रात 4 मुख्तलिफ मकामात पर टकराते हैं। यहाँ पर यह डिटेक्टर नस्ब है जिसमें ज़र्रात का मुशाहिदा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको ताकतवर मकनातीसों के जरिए एक कतार में लाकर डिटेक्टर में दाखिल करवाया जाता है, क्योंकि इसके बगैर इनके आपस में टकराव के इम्कानात कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के तसादुम के नतीजे में सैकड़ों नए ज़र्रात वजूद में आते हैं। डिटेक्टर हर नए जर्रे की रफ्तार और किस्म का तयन करता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के गुच्छों को सिर्फ डिटेक्टर में टकराना मकसूद है। चूंकि एक सेकंड में ये गुच्छे 1000 मरतबा एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, इसलिए इनके टकराने और जाया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गुच्छों को अलहदा रखने के लिए खास मकामात पर इस तरह के बरकी रिंग नस्ब हैं। गुच्छों के घूमने के नतीजे में इनसे तापकारी खारिज होती है जो कि इंसानों के लिए मुज़िर है। चुनाचे इस दायरे को 100 मीटर ज़ेरे ज़मीन बनाया गया है। तापकारी की सूरत में जो तवानाई ज़ाया होती है उसे पूरा करना जरूरी है। पॉजिट्रॉन को आगे की तरफ हरकत देने के लिए एक ताकतवर बरकी लहर पैदा की जाती है। इस बरकी लहर में मुस्बत और मनफी दोनों तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिट्रॉन के पीछे एक मुस्बत बार है जो उसे आगे की तरफ धकेलता है और इसके आगे मनफी बार है जो इसको अपनी तरफ खींचता है। यूं ये धकेलने और खींचने का अमल जारी रहता है। सिर्फ 1 मीटर के फासले में हर पॉजिट्रॉन की तवानाई में 60 लाख वोल्ट्स का इजाफा होता है। गो के इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं दिखाया गया, लेकिन वो भी इसी अमल के तहत अपनी रफ्तार और तवानाई बढ़ाता है। Here at CERN, antimatter is not a fantasy. एक जमाना था कि एंटी पार्टिकल बनाना और उसका मुशाहिदा करना एक बहुत बड़ा साइंसी कमाल समझा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हर किस्म का एंटी पार्टिकल यानी ज़िद्दे ज़र्रा आसानी से बना सकते हैं। जब हम प्रोटॉन्स की बमबारी किसी धात पर करते हैं तो इसके नतीजे में हर किस्म के ज़र्रात और ज़िद्दे ज़र्रात पैदा होते हैं। इनको बरकी और मकनातीसी मैदान यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से गुजार कर अलहदा किया जाता है और यूं ये नए तजुर्बात और मुशाहिदात के दरवाजे खोल देते हैं। डिराक ने ज़िद्दे ज़र्रात की पेशगोई के साथ ये भी मालूम किया था कि तबियत के कवानीन ज़र्रात और ज़िद्दे ज़र्रात यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स दोनों के लिए यकसां हैं। मिसाल के तौर पर एक आम हाइड्रोजन एटम मुस्बत चार्जशुदा प्रोटॉन और मनफी चार्जशुदा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। कुछ अर्सा पहले जमीन पर एंटी हाइड्रोजन एटम्स भी बनाए गए जिनके मरकज में मनफी चार्जशुदा ज़िद्दे प्रोटॉन है
और मुस्बत इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन उसके गिर्द घूमते हैं। The anti-hydrogen atom is one good example of how the laws that apply to matter apply in exactly the same way to antimatter. Here at CERN, CERN में हम एंटी हाइड्रोजन एटम्स बना चुके हैं। इसका तरीका ये था कि पहले जिद्दे प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन को अलग-अलग बनाया गया, फिर इन्हें एक दूसरे के नजदीक लाया गया। इस एंटी एटम की तमाम सिफात बिल्कुल वही हैं जो एक आम हाइड्रोजन एटम की होती हैं, यानी वजन, साइज वगैरह के लिहाज से ये बिल्कुल बराबर हैं। अगर हम एंटी ऑक्सीजन बना सकते तो एंटी हाइड्रोजन और एंटी ऑक्सीजन के मिलाप से एंटी वाटर भी बना सकते, और अगर इसको ठंडा करते तो इससे एंटी आइस बनती, और यकीनन इसके बाद मजेदार एंटी आइसक्रीम बनाना भी क्या मुश्किल होता। मादा मुख्तलिफ अनासिर के मजमूए का नाम है। हर उनसर एक खास एटम का बना होता है जिसमें मुख्तलिफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस तादाद होती है। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकली का अमल शुरू होता है और इस तरह इनमें कशिश पैदा होती है। बाज एटम दूसरे एटमों से जुड़कर सालमे यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। किसी सालमे की मजबूती और इस्तेहकाम का तयन सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं। प्रोटॉन की बजाय जिद्दे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बजाय जिद्दे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते तो इन पर मुश्तमल एंटी एटम की वही खुसूसियात होती जो आम एटमों की हैं। जमीन पर सिर्फ वही जिद्दे मादा मौजूद है जो हम बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इन जैसी तजर्बा गाहों में तैयार करते हैं। जाहिर है कि दोनों का जमीन पर इकट्ठे होना नामुमकिन है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि दूर कहीं कायनात की वुसअतों में कोई हम जैसी दुनिया हो, लेकिन वो मादा नहीं जिद्दे मादा की बनी हुई हो, और वहां मादे की वो हैसियत हो जो यहाँ जिद्दे मादा की है। ऐसे सैयारे पे डीएनए का वही सालमा मौजूद होगा जो हमारी जमीन पर मौजूद है और जो तमाम जिंदगी का मुहर्रिक और महवर है। ऐसे सैयारे पर जिंदगी की तमाम शक्लें वही होंगी जिनसे हम मानूस हैं। मुमकिन है वहां का हर इंसान यहाँ के हर इंसान ही की तरह हो, लेकिन आपके लिए अपने हमशक्ल से हाथ मिलाना बहुत खतरनाक साबित होगा। अब अफसाना निगारों को तो किसी बात के सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन साइंसदान बगैर ठोस सबूत के कोई बात कबूल नहीं करते। अगर कहीं दूर कायनात में जिद्दे मादा मौजूद है तो इसे पता करने का एक बड़ा वाज़ेह तरीका है। जब जर्रा और जिद्दे जर्रा आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में रोशनी निकलती है, एक मखसूस रंग की रोशनी निकलती है। इस रोशनी को हमारे आलात पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं। साइंसदान इंतहाई हसास दूरबीनों के इस्तेमाल से कायनात के दूर दराज हिस्सों से पहुंचने वाली रेडियाई लहरों और एक्सरेज का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन ये शुआएं फजा में मौजूद मुख्तलिफ एटमों से टकराती हैं और किसी हद तक मुंतशिर होती हैं। फजाई रुकावटों से बचने के लिए ये काम एक खलाई दूरबीन के सुपर्द किया गया है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप कहलाती है। हबल खलाई दूरबीन एक हसास और फाल दूरबीनी निजाम है जिसकी मदद से हम बहुत दूर मौजूद कहकशाओं से आने वाली मध्यम शुआओं को भी देख सकते हैं। साइंसदान जो जिद्दे मादा की तलाश में हैं, इन कहकशाओं का मुताला कर रहे हैं। हमारी अपनी कहकशां यानी मिल्की वे अनगिनत सितारों और गर्दो गुबार के बादलों पर मुश्तमिल है। इस दूरबीन की मदद से हम इस कहकशां को और इससे दूर, बहुत दूर दीगर कहकशाओं को भी देख सकते हैं, जहां पे रोशनी ने अपना सफर अरबों साल पहले शुरू किया था और जो अब हम तक पहुंची है।
इस रोशनी की धार को एक मंशूर में से गुजारा जाता है। मंशूर में से गुजरने वाली रोशनी मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है। अगर इसमें वो मखसूस रंग मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मिलाप से या प्रोटॉन और जिद्दे प्रोटॉन के मिलाप से बनता है, तो फिर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि खला में कहीं मादा और जिद्दे मादा टकरा रहे हैं। All experiments and observations indicate that most of the universe is made of matter. तमाम मुशाहिदात और तजुर्बात इस बात की निशानदेही करते हैं कि कायनात सिर्फ मादे पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर हमारा सैयारा मादे का बना है और दीगर सैयारे भी मादे के बने हुए हैं। जाहिर है कि अगर चांद जिद्दे मादा का होता तो खलाबाज वहां पहुंचकर आग का गोला बन जाते। हमारी कहकशां में से अगर कोई सितारा एंटी मैटर से बना होता तो कभी न कभी वो मादे से टकराता और इससे शदीद तापकारी पैदा होती। अगरचे खलाई शुआएं यानी कॉस्मिक रेज में कुछ पॉजिट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन इनकी मिकदार आटे में नमक के बराबर है। जिद्दे मादा का वजूद जानने के लिए ये जरूरी है कि हम उस अजीम धमाके की तरफ जाएं जिससे हमारी कायनात मारिज़े वजूद में आई। If we want to understand that, we have to go back to the very early stages of the Big Bang, when the universe first came into being. 15 अरब साल पहले एक अजीम धमाके से ज़मानो मकान वजूद में आए। साथ ही मादा और जिद्दे मादा के बुनियादी ज़र्रात बनते चले गए, जो एक दूसरे से फना व बका की जंग में मसरूफ़ अमल हो गए। अगरचे तकरीबन सारा मादा फना हो गया, मगर जो थोड़ी सी मिकदार रह गई वो आज हमारी कायनात की सूरत में मौजूद है। जैसे जैसे कायनात का दर्जा हरारत कम होता गया, बारीक तरीन ज़र्रात जो क्वार्क्स कहलाते हैं आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जन्म देने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में जुड़ने से एटम के मरकज़े बने, लेकिन इस गर्मी में इलेक्ट्रॉन मरकज के गिर्द नहीं ठहर सकते थे। जब कायनात की तपिश कम हुई तो ये मरकज़े इलेक्ट्रॉन को पकड़ने में कामयाब हुए और यूं एटम वजूद में आए। हाइड्रोजन एटम्स की तादाद सबसे ज्यादा थी और बादल की सूरत में हाइड्रोजन फैलती चली गई। ग्रेविटी यानी कशिश सकल ने इन बादलों को एक मरकज की तरफ खींचा। उसके बाद एक न्यूक्लियाई अमल शुरू हुआ। इस तरह सितारे वजूद में आए। आज कायनात में मौजूद अरबों सितारों की कहकशाएं इसी तरह बनी। इस अजीम धमाके के तकरीबन 10 अरब साल बाद हमारा निजाम शमसी, जमीन और चांद वजूद में आए। Now, the Big Bang theory has passed a large number of experimental tests. बिग बैंग के नजरिए को कई तजुर्बात की कसौटी पर परखा गया है। मिसाल के तौर पर हम कहकशाओं को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखते हैं। हम उस तापकारी का भी मुशाहिदा करते हैं जो उस वक्त मौजूद थी जब कायनात आज से 10,000 गुना ज्यादा गर्म थी। उन अनासिर को भी देखते हैं जो उस वक्त बने जब कायनात आज से अरबों गुना ज्यादा गर्म थी। लेकिन एक मसला जिसको हम वाज़े तौर पर नहीं समझ सके हैं वो मादे का जिद्दे मादे पर गालिब होना है। इस सिलसिले में 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि इब्तिदाई में मादे की मिकदार जिद्दे मादा से ज्यादा थी। दूसरी सूरत जिसका इम्कान ज्यादा है और जिसका हम साइंसी अंदाज से तज्जिया कर सकते हैं वो ये है कि ये कायनात मादा और जिद्दे मादा की यकसा मिकदार से वजूद में आई, लेकिन एंटी मैटर और मैटर की खुसूसियात में मामूली सा फर्क है। साइंसदान ये समझते थे कि मादा और जिद्दे मादा फिजिक्स के यकसा कवानीन के ताबे हैं, लेकिन सन 1964 में 4 अमरीकी साइंसदानों ने एक ऐसा तजुर्बा किया जिससे मालूम हुआ कि मादा और जिद्दे मादा के ज़र्रात में एक इंतहाई मामूली फर्क मौजूद है। इस तजर्बे में उन्होंने एक मखसूस पार्टिकल का मुशाहिदा किया जिसे केऑन कहते हैं और 23,000 वाकयात में से 50 ऐसे वाकयात की निशानदेही की जो ज़र्रात और जिद्दे ज़र्रात में फर्क की अलामत थे। इस कारनामे के सबब उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे कि ये तय पाया कि मैटर और एंटी मैटर के जो इंटरैक्शंस हैं या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। शिकागो में फर्मी लैब में एक्सपेरिमेंट हुए हैं और स्टैनफोर्ड में और जापान में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिसमें कि एक नया मेज़ॉन पैदा किया जाएगा बहुत ज़्यादा तादाद में, उसको बी मेज़ॉन कहते हैं, और उसका एंटी पार्टिकल एंटी बी मेज़ॉन पैदा किया जाएगा और उनके फना होने से जो असरात हैं वो
اسٹڈی کیے جائیں گے اور اس میں جو میٹر اور اینٹی میٹر میں جو فرق ہے وہ بہت واضح طور پہ سامنے آ جائے گا، اور سب لوگوں کو یہ امید ہے کہ اس سے میٹر اور اینٹی میٹر کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک واضح تھیوری کے طور پہ فارمولیٹ ہو سکے گا۔ مادہ اور ضد مادہ کی خصوصیات میں فرق جانچنے کے لیے انتہائی مشکل اور حساس تجربات کی ضرورت ہے۔ تیز رفتار الیکٹران اور پوزیٹران کے تصادم سے ہزارہ نئے ذرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ بی میزونز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر مادہ اور ضد مادہ کے قوانین میں فرق ہے تو یہ بی میزونز اپنے ضد ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ تبدیلی کس رفتار سے ہوتی ہے، اس کا تعین قوانین میں فرق سے ہوتا ہے۔ ایسے تجربوں میں لازمی طور پر بیک وقت ہزاروں ذرات کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے، جس پر آج دنیا بھر میں ہزاروں سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ ضد مادہ کی کامیاب پیشگوئی منطق اور ریاضی کی ایک شاندار کامیابی ہے۔ بس ڈیراک کا یہ کہنا کہ دنیا میں موجود ہر ذرے کا ضد ذرہ بھی وجود رکھتا ہے درست ثابت ہوا۔ گو کہ آج یہ انتہائی مجرد حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں انسان ضرور اس سے استفادہ کرے گا۔ گو کہ میٹر اور اینٹی میٹر کے قوانین میں بہت حد تک یکسانیت ہے، لیکن ان قوانین کے مابین جو معمولی سا فرق ہے اسے دریافت کرنا دنیا کے بہترین ذہنوں کی توجہ مبذول کرائے ہوئے ہے۔ تاہم یہ حقائق جاننے کے بعد ہی یہ جانا جا سکے گا کہ کائنات کے ابتدائی لمحات کیسے گزرے۔ مثال کے طور پر درجہ حرارت کس رفتار سے کم ہوا اور کون کون سے ذرے کس تعداد میں اس وقت موجود تھے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ یقیناً ایک اہم سوال ہے کہ ابتدائے کائنات کے وقت اینٹی میٹر نے کیا کردار انجام دیا تھا، اور آج کائنات میں اس کی مقدار اتنی کم کیوں ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن بہت سے سوالوں میں سے یہ صرف ایک سوال ہے۔ نئے سوال، نئی جستجو، نئی تحقیق، یہ سائنس کی اصل روح، اس کی اصل حقیقت ہے۔ اور آج رفتہ برفتہ، منزل بمنزل، پے در پے، ہم اپنی کائنات کو بہتر سمجھنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔